The Mahamandaleshwar of the Nirvani Akhada, Kapil Dev Das, died of corona-related complications at the Mahakumbh Mela in Haridwar. 68 seers have now tested positive. The situation is extremely alarming, with 1,701 people testing positive between the 10th and the 14th of April, and another 332 testing positive just yesterday at Haridwar. Two akhadas at the Mahakumbh have now decided to call it quits, but several, including the Bairagi Akhada, are not on the same page. The question is, should the Mahakumbh Mela, which sees lakhs of devotees congregate on the banks of holy river Ganga, be called off early this year? Isn't life more important than faith? A look at this massive crowd at the Mahakumbh might make you think that the virus and its spread does not matter. But the number tell a different and very, very disturbing story. In the last 24 hours, 629 COVID cases have been reported in Haridwar. This includes nearly 60 saints and seers of various akhadas who have congregated in the holy city for the Mahakumbh. The virus is there and it is spreading through the Mela. As the cases surge in akhadas across Haridwar, two akhadas have decided to end celebrations on 17th April, 12 days before the Mahakumbh officially comes to an end. इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। The last and final Shahi Snan is slated for 27th April. Lakhs of devotees and saints have already taken part in two holy dips earlier this month. While some akhadas are leaving before third Shahi Snan in the wake of the mega surge, there are others who are staying on till the end of the Kumbh Mela. जो अब ये निकाला है, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे जूना हो, चाहे कोई अखाड़ा हो, अगर 13 अखाड़े के बिना सम्मति के आपने घोषणा कर रहे, आप बयान कर रहे टीवी में, तो आप लोगों के साथ हम लोग का संबंध रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल नहीं, खत्म। ये फैसला नहीं लिया, ये मूर्खतापूर्वक फैसला नहीं है। फैसला तो 13 लेते हैं। आप मनमुखी है, ये लोग हैं, लोग साधुता इन लोग का है ये नहीं है। The Haridwar administration on its part is staying vigilant, even though the crowds continue to swell. निरंजनी अखाड़ा, जैसे मैंने कहा, पूरी तरह से अपने अखाड़े से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकता है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र भी रहेगा। उसमें हम जो भी वो व्यवस्था कहते हैं, या अखाड़े में अगर कम या ज़्यादा जो भी पार्टिसिपेशन की बात कहते हैं, वो हम लोग अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। शासन और प्रशासन की तरफ से वो सारी व्यवस्था की जाएगी। तो लोग जो आ रहे हैं किसी तरीके से पॉजिटिव आए और यहाँ पर पॉजिटिव में वायरस लेकर चले जाते हैं, तो कई लोगों पर ये बीमारी का असर आ सकता था। तो इस लिहाज से ही हम लोग एक प्लान बनाए, जिसमें 2010 की तुलना में हमने बेडों की संख्या भी नेचुरली हमें बढ़ानी पड़ी। कोविड के लिए कोविड केयर सेंटर्स की संख्या बढ़ानी पड़ी, कोविड के लिए हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट करने पड़े। Should there even be a difference of opinion on the fact that the Mahakumbh threatens to be a serious spreader event, shouldn't such mass gatherings be banned now? With Sanjay Sharma in Haridwar, Bureau Report, India Today. Joining me on India First is Swami Avdeshanand Giri, the Acharya Mahamandaleshwar of the Juna Akhada. Swami ji, कोरोना के मामलों में लगभग एक विस्फोट सा हो रहा है। इस समय देश भर में खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी दृष्टि में क्या महाकुंभ के स्नान में श्रद्धालुओं की भीड़ को अब रोक देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से कुंभ में कुछ आंकड़े बढ़े हैं कोरोना के, उस प्रकार के वैसी ही व्याप्ति अथवा एक प्रचंड प्रहार महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, वैसा ही एक प्रहार राजस्थान में है, अन्य प्रदेशों में बहुत बुरी हालत छत्तीसगढ़ में है। न जाने अनेक प्रदेश इससे प्रभावित हुए।
मैं बड़े विश्वास के साथ बात कहना चाहूंगा कि उतने आंकड़े कुंभ में नहीं है जितने अन्य प्रदेशों में। हाँ, सच है कि संसार भर से लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग चलकर आए। उत्तराखंड की सरकार बड़ी मुस्तैद है, यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत हैं। लेकिन आपने स्नान की बात कही, तो हम दो लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए, देखिए आस्था से बड़ी चीज प्राण सत्ता है, आस्था से भी कहीं बड़ी चीज मनुष्य और उसके प्राण है। तो आने वाले स्नान बैरागियों के जरूर ढंग से हो, लेकिन हम लोग प्रतीकात्मक स्नान करेंगे, ऐसा हम लोगों ने विचार। ठीक ठीक, आपने खुद ही कहा आस्था बड़ी या जीवन मेरा प्रश्न था, लेकिन आपने यही कहा कि प्राण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आने वाले समय में क्या स्नान केवल प्रतीकात्मक हो, किसी भी अखाड़े से एक आध दो लोग आ जाएं, स्नान कर ले, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि मामले तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अन्य अखाड़ों से जो सन्यासी अखाड़े हैं वो इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी संख्या में जाएं, बहुत सीमित सी नगण्य संख्या में जाकर, और पर्व की पूर्ति की जा सकती है, पर्व के प्रयोजन की सिद्धि की जा सकती है। अब ऐसा भी किया जा सकता है कि पर्व का भी सम्मान हो जाए और भारी संख्या में लोग न जाएं। इस बात पर प्राय सभी के मन बन रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि एक महामंडलेश्वर का दुर्भाग्यवश निधन हो गया, 68 से अधिक संत इस समय कोरोना ग्रसित है। क्या आपकी दृष्टि में श्रद्धालुओं के लिए, चलिए आप कह रहे हैं कि जिन अखाड़ों का स्नान नहीं हुआ, पर्व की पूर्ति के लिए एक आध दो लोग वहां से चले जाए, लेकिन क्या श्रद्धालुओं के लिए अब स्नान को रोक देना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर मानवीय सत्ता पर, मनुष्य के प्राणों पर कोई आघात आ रहा है तो वो स्नान गौण है, स्नान प्रमुख नहीं है। हम जीवन पहला चाहते हैं, मनुष्यता पहला चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भय पैदा हो, आशंकाएं पैदा हो। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। सन्यासी अत्यंत संवेदनशील होते हैं, उनके लिए कोई हट नहीं, ऐसी कोई हमारी जिद नहीं, इस प्रकार का कोई हमारा आग्रह भी नहीं कि हमारे स्नान बहुत आवश्यक है और प्राणों को हम चुनौती दें। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आने वाला स्नान है, उसमें प्रतीकात्मक स्नान किया जा सकता है। प्राय इस पे सबके मानस लगभग बन चुके हैं। जी, लेकिन आपका बहुत सम्मान है, क्या आप इंडिया फर्स्ट पर इस तरह की अपील करेंगे? क्या इस तरह की अपील करने की आवश्यकता है कि जो मां गंगा के भक्त हैं वो इस वर्ष अपने घर ही रहे? इसी से वो ब्रेक द चेन जो सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना फैले ना, जब दो लोग मिलते हैं तभी कोरोना फैलता है, एक से दूसरे में जाता है, तो लोगों के प्राणों की रक्षा इसी तरह हो सकेगी कि लोग हरिद्वार इस समय कम से कम आए या न आए तो बेहतर है? देखिए, मैं हिंदू धर्माचार्य सभा का अध्यक्ष भी हूं, जो सभी संप्रदायों के आचार्यों की एकमात्र सर्वोच्च संस्था है। तो मैं हिंदू धर्माचार्य सभा के अध्यक्ष के नाते और एक जूना अखाड़ा के आचार्य के नाते, जो भारी संख्या लाखों यति योगी सन्यासियों का एक मैं अखाड़े का प्रमुख हूं, तो मैं अपील करता हूं आस्तिक जनों से, भावुक जनों से, भारत के सभी भावुक भक्तों से कि वो इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए हरिद्वार की ओर न बढ़े, कभी किसी और समय में आकर स्नान करें। और हम नहीं चाहते किसी प्रकार की उनको हानि हो, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई प्रकोप है भी नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई प्रचंड प्रहार है भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई आशंका है तो हम चाहेंगे कि भावुक भक्त फिर किसी अन्य समय में आकर भी स्नान कर सकते हैं। जी, क्योंकि स्वामी जी हम लोग लगातार डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शुरू में महाराष्ट्र में भी यही लगा कि इस बार प्रचंड प्रहार नहीं है और एकाएक बिल्कुल बड़ा विस्फोट सा हुआ। वैसा ही हम राजधानी दिल्ली में भी इस समय देख रहे हैं। क्या खतरा यह है कि अभी ऐसा लग रहा हो कि प्रचंड प्रहार नहीं है, लेकिन जब यही श्रद्धालु अपने घर लौटेंगे, अपने शहर लौटेंगे, तो एकाएक कोरोना का एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, न केवल हरिद्वार में बल्कि अलग अलग जगहों पर, और तब गांवों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है तो हम अपील करते हैं लोगों से कि हम अपने भारत की रक्षा करना चाहते हैं। मैं धन्यवादी हूं अपने देश के प्रधानमंत्री का, अपने देश के गृह मंत्री का, राज्य सरकारों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों का, कि वो सब इसमें इस बात से एक मत है कि भाई मेला सुरक्षित हो, हम मेले को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसमें हमारी कोई जिद नहीं है
कि हमें स्नान ही करना है, लेकिन हम बैरागियों के संकल्प की भी पूर्ति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बैरागियों के मन में ये बात आए कि हम स्नान नहीं कर सके, तो उनका स्नान हो, पर ऐसा ना हो कि कोई हम लोग भारी संख्या में जाएं। उस पर हम लोग मुस्तैद हैं, उस पर हम लोग अत्यंत संवेदनशील हैं। हम लोग आगे से अगर जाएंगे अगले स्नान में तो प्रतीकात्मक होगा, सिंबॉलिक होगा, कुछ लोग जाएंगे, और अगर हमें वो स्नान भी न करना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बड़ी बात कही आपने। हालांकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि बैरागी अखाड़ा है, या कुछ ये भी कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े के संत हैं, वो चाहते हैं कि वो बड़े तरीके से अभी भी अपने स्नान में जाना चाहते हैं और जल समापन के पक्ष में नहीं है। क्या सभी 13 अखाड़ों को एक मंच पर लाने का आप प्रयास करेंगे? हम लोग प्रयास करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि सभी अखाड़े इस पर कोई विरोध प्रकट करें, मुझे लगता नहीं। और अगर बैरागियों की, विशेषकर जो हमारे बैरागी अखाड़े हैं, उनके संकल्प का भी हम सम्मान करना चाहते हैं कि उनका भी स्नान भले प्रकार। स्वामी अवधेशानंद जी, आप इंडिया फर्स्ट में मेरे साथ जुड़े, इंडिया टुडे पर बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही कि जो आपकी अपील है, जूना अखाड़ा की अपील है, उसको भक्तजन सुनेंगे और कम संख्या में आएंगे, या ना आए तो उससे अच्छा इस समय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। प्राण बहुत आवश्यक है। फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन इंडिया फर्स्ट, सर, मेनी थैंक्स। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.